So do I see any youth here? Can you show your hands, wave? Lovely. And I'm sure you interested by the intrigued by the title of our talk, why youth is confused. क्या आप लोग confused हैं? बहुत ज़्यादा. किस चीज़ से? सब चीज़ से. So good morning, and my name is Goyal, and we have a very prominent panelist of eminent educationists and speakers with us here. Let me introduce Madam Karuna Yadav. Again, loads of experience teaching, mentoring, and guiding young students like all of you. A very passionate teacher. Madam Archana Mankotiya, Principal NGT Girls School. Again, a person who has loads of experience with her, बहुत बच्चों को guide करती है, and a wonderful person and a speaker. Dr. Sanjay Biyani group of colleges से आप हैं, सर motivational speaker भी है, writer भी है, और आप सब बच्चों के लिए एक guide है. Madam Karuna Yadav, I must introduce, is the director of Sanskrit Academy, a place that she's nurtured on her own and started. So आज हम जब बात कर रहे हैं why youth is confused, और आपने कहा सबसे ज़्यादा confusion है और बहुत चीज़ों को लेकर, तो कहीं ऐसा लगता है कि Google मैप है और बस अपना रास्ता ढूंढना है. So sir, मैम, बच्चों के लिए ऐसा है कि मंजिल का पता नहीं है, रास्ता भी है, मुसाफिर हूँ, बस निकल चला हूँ, मंजिल पता नहीं कहाँ है, ढूंढते जा रहे हैं. ऐसा कुछ एक आज के परिवेश में हम देखते हैं हमारे बच्चे हो रहे हैं. So सबसे पहले संजय सर आपसे स्टार्ट करते हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चों में इतना कंफ्यूजन क्यों है और किस बात को लेकर है? प्लीज. बहुत अच्छा मैम, अभी आपने एक शब्द लिया, रास्ता और मंजिल. मुझे लगता है हमने उनको समझा नहीं. हमने अपने जिसको मंजिल समझना था उसे अपने अपना रास्ता समझ लिया, और जिसको रास्ता समझना था उसको मंजिल समझ लिया. तो जब तक हमारे लाइफ के मोटो और ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होंगे तो कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड तो रहेगा. हम लोग पाना क्या चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं. कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, फिर क्या करोगे डॉक्टर बन के? कोई बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो फिर क्या करोगे इंजीनियर बन के? That all are the medium, but where is the destiny? Destiny हर आदमी को चाहिए अंदर से हैप्पीनेस, उसको खुशियां चाहिए, उसे आनंद चाहिए, उसे मस्ती चाहिए, लेकिन हमें उसका मालूम ही नहीं. और हमें लगता है कि जैसे मैं सीए बन जाऊंगा मैं खुश हो जाऊंगा, जैसे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, पर मेरे को तो नहीं लगता वो वास्तव में खुश हुए. तो मुझे लग रहा है कि जो आप पूछ रहे हैं व्हाट इज व्हाई द कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, तो मुझे लगता है कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड का सीधा सा कारण है कि आदमी के ऑब्जेक्टिव का क्लियर ना होना. जब तक ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, मुझे ऐसा लगता है. Thank you, sir. Before I ask for opinion and views from our principals here, एक बहुत छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जब सर बात कर रहे हैं कि आप सीए बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं करियर चॉइस की बात कर रहे हैं. And I think the maximum amount of confusion that lies and troubles all the youngsters today is about choice of career. So Archana ma'am, I'd like you to speak something about the choice of career and the options available. Perhaps ज़्यादा option में से easy है या has it become difficult, ma'am? नमस्कार. चेरी, आपने कहा, आपने इन बच्चों से भी पूछा कि क्या आप कंफ्यूज्ड हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we decided that yes they are confused, but I think majority ने भी कहा कि हम confused हैं. I personally feel that confusion comes because of the area of choices that you have, or choices and options हर field में. Whether it is career, you spoke about careers, whether it is about choosing a subject, a stream, a career or profession, whether it is going out shopping and choosing anything, your shirt, trousers, any kind of things that you buy, उसमें भी इतनी choice है. There is choice in relationships. Relationships को कैसे handle करना उसमें भी है. There is a choice in experiences. You want to experience certain things in life, either by going somewhere, being part of an event, going to a party.
Everything today has many more choices. It is natural that confusion will come. But I personally feel this may not be termed as confusion. I think these are challenges of life and you are trying to navigate. आप जैसे बियानी साहब ने कहा कि हम रास्ता ढूंढ रहे हैं और मंजिल तो मुझे लगता है मंजिल तो एक ही आखिर में जहाँ हमको सबको जाना है तो पूरी जिंदगी जो चल रही है वो पूरा एक रास्ता है और रास्ते में बहुत सी चॉइसेस आती जाती हैं और हमें डिसीजन लेना है अब कंफ्यूजन वहाँ आता है कि जब हम डिसीजन लेना चाहते हैं तो क्या डिसीजन लें किस बेसिस पे लें मुझे लगता है यूथ को कंफ्यूजन से ज्यादा शायद डर है हम जो डिसीजन लेंगे क्या वो सही होगा या नहीं होगा What if I go into medicine and it doesn't work? What if I tomorrow become an engineer but I do not enjoy doing what I'm doing? तो क्या होगा? So I think that fear is there, but at the same time, you all are lucky that you are getting a chance to change the decision and move on to something else. So having choices, for me, I think is a good thing because you have a better chance to move on to something new and different every time that you feel that you are probably not at the right place at the right time. So career choices, yes, there are so many, but then the difficult part I would feel is coming to a decision how to choose and what to choose, not the fact that there are so many choices. Thank you. Thank you, ma'am. Karuna ma'am on that note. So when ma'am says that it is the fear of being judged or fear of being ascertained later that whether you chose the right thing or not, what would you want to say about that? Should we have these kind of fears around? How to remove them from our systems? Thank you, Jerry. First and foremost, it's wonderful to be a part of this knowledge consortium. Thank you, Sunil, for having us here. The topic says, is the youth confused? As for me, more than the confusion, it is the concern. Concern we as a society, concern for us as students, concern for us as parents. It is the concern. Like what Sanjay said, the objective is not clear, the why. If the why of life is clear, why I am doing what I am doing, why I should be doing what I should be doing, if that clarity is there in a student, or for that matter, any individual, and if the life becomes a cakewalk. Everything follows once your objective and once your why is clear. And now why in this competitive world, hyper-competitive world, there is a huge challenge of whys. My purpose, if any individual taking birth on this mighty earth has one objective, and that objective is to live, survive, thrive, and sustain. So if I have to, okay, I took birth in a family, got support, good admission in colleges and schools and in schools. By the time the child comes in 11th and 12th, the school per se, they are expected कि एटलीस्ट इतना तो सेंसिटाइज कर दे बच्चों को कि लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइफ में आपको आगे जाके 50, 60, 80 इयर्स तक आपको क्या करना है यू वांट टू हैव अ करियर यस यू वांट टू गेट मैरिड यस यू वांट टू हैव अ फैमिली यस यू वांट टू हैव अ हाउस एंड अ फोर व्हीलर दोस ऑब्जेक्टिव्स आर देयर बट देन द विजन इज देयर we help them the schools they help them to create a vision now vision is there so we, the media, the tools, the teachers, educators, lecturers, colleges, we equip them, giving them the clarity as to how are they going to achieve this mission. Vision clear, vision हमने दे दिया बच्चे को, बच्चे ने ले लिया, एक बना लिया कि मेरे को लाइफ के अंदर एक काम करना है, अपनी लाइफ को एंगेज करने के लिए. Not everyone who's studying becomes an engineer. Not everyone who's studying becomes a law graduate or a lawyer or a doctor. So everybody has a different, I mean, with
careers are there. Aim and objective is to live and survive in this hyper competitive world. अपनी एक जिंदगी बनाना, अपनी एक फैमिली के साथ, जहाँ एक considerably luxurious life, happiness, successful life achieve करें. That boils down to a sustainable, thriving life, happy life. उसके लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हमारे पास वेरियस पाथ है, और हर कोई भी दो स्टूडेंट का एक पाथ नहीं हो सकता. वैसे ही जैसे हर दो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता. ऑब्जेक्टिव्स अलग है तो उसके पाथ, मैसेजेस जो है वो उसके अलग होंगे. उसको कैसे अचीव करना है और हम कैसे अचीव करते हैं. दे एस्पिरेशन, माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आई कांट सी यू बट देन आई होप यू आर लिसनिंग. एस्पिरेशन इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई है. ये करना है, वंडरफुल, एस्पिरेशन होना भी चाहिए, वही ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन उसके कमेंसुरेट एफर्ट्स नहीं है. मैंने ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर लिया, लेकिन मेरे को वो जो एक थ्रस्ट चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, उसको वहां अचीव करने के लिए वो ना मेरे पास गाइडेंस है, ना मेरे पास काउंसलिंग है. और जब ऐसी सिंपोजियम, कंसोर्टियम्स होते हैं तो हमारे पास इतने से हैंडफुल ऑफ यूथ है जो कि कंसर्न कहते हैं लेकिन दिखाते नहीं है. So you're not concerned, efforts नहीं है. So there's only 1 inch, my dear boys, and no matter how many handful of you are there, your efforts should be commensurate with your objective. अगर effort है 1 inch अंदर और comfort है वो भी 1 inch अंदर, all you have to do is you move 1 inch out of your comfort zone. कंफर्ट जोन मेरे को 9 बजे ही उठना है, फ्रेंड्स के साथ भी घूमना है, 20% 30% ऑफ द टाइम मोबाइल के ऊपर टिकटॉक्स एंड मीम्स एंड व्हाट इज गोइंग ऑन, वो भी अच्छी चीज नहीं देखनी है. एंड देन एस्पिरेशन है कि माय दिस फ्रेंड वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसने क्या कर लिया यार, ये तो छुपा रुस्तम निकल गया. नो, when you were busy doing all those trivial things, he was busy studying, he was busy taking a guidance, he was busy reading, googling, he was busy making an effort towards reaching the goal. कि मैं क्या करूं, इधर वाया मीडिया वो ढूंढ रहा था जब आप अपना समय गवा रहे हैं. और ये जो 18 से 20 25 27 साल का जो समय है, अगर आपने वो गवा दिया, जहां आपने इग्नोर करा, आप शर्मसार होते हैं, आप नाराज होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप कर्ज करते हैं अपनी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, आप पेरेंट्स के एफर्ट को नेग्लिजेंट करते हैं, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है. लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर आपका जो एफर्ट है, आप अपनी कंफर्ट जोन से 1 इंच आगे नहीं निकलते और अपनी एफर्ट जोन जो कि 1 इंच बाहर है उसको अचीव नहीं करते. And you all end up becoming a crybaby. Choices are there. I have been in education, and we all have been in education. In 11th and 12th, and I'm sure you could relate yourself. The student के अंदर एक शॉप है, और a dry cleaning shop है, और a coaching center है, या कोई जूते की दुकान है, या कोई भी जिसका फादर का जो वोकेशन था. You people, you feel bad about that vocation. You want to go in for something कि मेरे को बाहर competition देना है, and you know it very well. Nobody knows you better than yourself, your own potentiality, whether or not you'll be able to compete with those thousands and lakhs of people. So, लेकिन जो vocation है, आप उस vocation को अपने ऊपर कोई भी effort नहीं करना. आप क्यों नहीं वो father की जो vocation है उसको कहीं आप बूस्ट करें. फादर ने लेकर आए, आप अपनी आईसीटी के अंदर आप इन्वॉल्व कीजिए. डिजिटल अभी जनरेशन जेड हम लोग कहते हैं, आप अपने आप को यू टेक प्राइड इन कॉलिंग योरसेल्फ एज जनरेशन जेड, योर जनरेशन जेड या जनरेशन आई, इंटरनेट, यू वर बोर्न विद इंटरनेट. तो हमारा टाइम और आप लोगों का टाइम बहुत फर्क है. हर चीज आपके पास, सिर्फ नियत और जज्बे की नियत नहीं है. एस्पिरेशंस है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, और किसी को करता हुआ देखते मन मुसाता भी है, मुरझा भी जाते हैं, कर्ज भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन एफर्ट नहीं.
So irrespective of plethora of choices we have, I wish you have the intention और नियत वो जज्बा कि मेरे को करना है, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी की लगाम मेरे हाथ में है. Nobody is going to serve you success on your hands. Not even your parents. Parents to an extent, to a particular age, आपको support करेंगे. After that time, because not every parent is an educated parent, technically educated parent. But then he or she is going to support you till the end. But then at the end of the day, you're 18, 19, 20, 22 years. You have to take hold of your life. Your life, you have come from here for a bigger objective. एक objective के साथ आए हैं, एक life को बनाने के लिए आए हैं, वो दूसरा नहीं बनाने देगा. वो उसकी खोज भी आपको करनी है, उसका रास्ता भी आपको देगा. मुश्किलें तो आएंगी भी. So don't get depressed. ये मुश्किल आ गई, ये कैसे करना? Oh, you have the world, Google. On the mobile, you have the entire world on your hand, on your this thing. आप उसके अंदर हर चीज मिलेगी. So only my this thing is my plea or request, consortiums, conventions, talks, seminars, symposiums, ये आते रहेंगे, बोलते रहेंगे. कितना जहन के अंदर आपको डाल. जब तक यहाँ नहीं लगेगा, my dear boys and girls there, I do not know how many of you are sitting there. जब तक यहाँ नहीं लगेगा, ये ऐसे symposium कितने भी हो जाए, you at the end of the day you still would be a confused child. For your confusion, you have to make an effort. I cannot go day in day out to make or to rectify her confusion unless she goes. So वो जो नियत है वो जब तक आपकी अपने अंदर से नहीं आएगी, till that time you do not internalize. सोचेंगे नहीं कि मेरे को क्या करना है. Like what Sanjay said, जब तक आपका objective clear नहीं होगा. Objective है स्कूल में जो कर रहे हैं, जिनके objective clear है, उनके 9-10 objective clear है और उनको confusion नहीं है, उनको concern भी नहीं है. Parents are also very relaxed. They know that their child is on the correct. लेकिन majority of you people, you are confused because clarity नहीं है. You are from school, you come down to college, पापा ने fees दे दिया, मामा ने fees दे दिया, and then from there you come to the college, bunking classes, you're not attending the classes, going home, and once you go home, you have that kind of stress, projected stress, कि मैं बहुत थक कर आया हूँ, ये बहुत थक कर आया हूँ. Heart to heart, you know how much out of those 4 and 5 periods, how much period you attended and how much justice you did to that one day, 24 hours. So जब तक clarity नहीं हो, जब तक transparency नहीं होगी for self, जब तक honesty नहीं होगी from within, you won't be able to. You still won't be able to. And I'm so sorry for that. Thank you so much, ma'am. That was very well said. And of course, until unless you make your effort, nobody is going to serve things on a platter. और कहीं ना कहीं सर मैं आपके पास आना चाहूंगी इस बात को लेकर, कहीं ना कहीं बहुत सारा एक शॉर्टकट वाला ये जनरेशन हो गया. दे वांट एवरीथिंग वेरी क्विकली. गूगल करो जल्दी से मिल जाएगा. उसको सिर्फ नॉलेज कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, पर वो उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते हैं. खाना भी जल्दी से ऑर्डर करना है, पकाने का झंझट क्यों करना? Why to cook when you can Zomato, when you can Swiggy? So this generation wants everything very quickly. और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा peer pressure, से मैम ने भी कहा कि हम देखकर इंस्पायर तो होते हैं, एक बार जब हम बहुत उसके लिए आकर्षित भी हो जाते हैं, मैं ये करूँ या ये करूँ, and then confused. तो peer pressure है, रोल ऑफ सोशल मीडिया है. सो आपका क्या कहना है सर, क्या सोशल मीडिया एंड peer pressure कुछ ऐसी चीजें जो हमें मिसगाइड कर रही है आज की जनरेशन को, और इज इट हेल्पिंग? यस मैम, देखिए अभी मैम ने कहा, करुणा मैम ने क्लियरिटी, एक बात तो डिसाइड हो गई, ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं, तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन होने चाहिए ताकि उन ऑल्टरनेटिव पर राइट चॉइस की जा सके, राइट टिक लगाया जा सके. So this is right. Objective should be well defined. Now the problem is clarity of objective. Clarity क्यों नहीं है हमारे objective में? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा. हमें यही पता नहीं, हमें आज शायद ही कोई बच्चा है मुझे बता पाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान. हमें पता नहीं है ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है. विज्ञान का मतलब होता है जो भी बाहर दिखाई दे रहा है, ये विज्ञान है, ये टेबल विज्ञान है, वही विज्ञान है.
लाइट विज्ञान। जो भी चीजें बाहर दिखाई दे रही है टेंजिबल नेचर की है, विज्ञान लॉजिक से चलती है। लेकिन ज्ञान होता है अंदर, आपके अंदर ईगो आती है अंदर, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है अंदर, आपके अंदर हैप्पीनेस आती है अंदर, आपके अंदर लव आता है अंदर, आपके अंदर कंपैशन आता है अंदर। हमारा एजुकेशन सपोर्टिव नहीं है, वो साइकोलॉजी और फिलोसॉफी की बातें कम, इंजीनियरिंग और साइंस की बातें ज्यादा करते हैं। लॉ वाले बच्चे लॉजिक्स लॉजिक्स लॉजिक्स, लॉजिक की अपनी हैसियत है। लेकिन मुझे लगता है जब आदमी खुद ही नहीं समझा तो भला दूसरों क्या समझेगा। उसके अंदर विल पावर क्यों नहीं है, उसके अंदर ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि कभी हमने फोकस ही नहीं किया। हमने इंसान को अच्छा इंसान बनाने पे काम कम किया, विज्ञान सिखाने पे ज्यादा काम किया। सोशल मीडिया क्या है? बाहर देखना सोशल मीडिया, और बाहर देखते हैं फ्रस्ट्रेशन होती है, बाहर देखते हैं जेलस होती है, बाहर देखते हैं एंगर होता है। और आज शायद ही कोई यूथ यहाँ बैठा हो जो बोले मुझे एंगर नहीं, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, मुझे जेलस नहीं होती। क्या हमने उनको बताया है कैसे खत्म करना है? क्या हमने हमारे स्कूल में आज तक जब तक कॉलेज में बच्चे आए वो डिवाइड लव का मतलब सबक सिखा पाए हम लोग? मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है वो इंसानियत कम सिखा रहा है और इंसानों को मशीन ज्यादा बना रहा है, इंसानों को भोगी ज्यादा बना रहा है। और मेरे को तो कोई भी भोगी, कोई भी मेटेस्टिक आदमी कभी हैप्पी दिखाई नहीं दिया। उसको हमेशा डिससेटिस्फाई हो जाता थोड़ी देर बाद। जो महात्मा बुद्ध के चेहरे पे करुणा है तो महात्मा गांधी सेटिस्फाई है, क्योंकि उनको इंटरनल हैप्पीनेस मिली है। मुझे लगता है कि अगर अभी अभी हम किसी को भी इनवाइट देंगे और बोलेंगे प्रेम जिससे हमारा जीवन बना है, प्रेम जो इस पूरी यूनिवर्स का बेस है, उसके बारे में 10 मिनट बात कर लो। हम प्रेम को डिफाइन तो नहीं कर सकते, हम बायोलॉजिकल प्रेम को प्रेम समझते हैं, दैट इज वेरी सबस्टैंडर्ड लेवल ऑफ द लव। तो मुझे लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, मैं वैसे बताना चाहूंगा, अगर हम वेदों को उपनिषदों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वी आर हैविंग 5 बॉडीज। जो हम जो भी बातें कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल बॉडी की बातें कर रहे हैं। सेकंड बॉडी दैट इज एनर्जी बॉडी। किसी के पास बैठ के अच्छा लगता है, किसी के पास बैठ के बुरा लगता है, बिकॉज़ देयर इज सम माइन्यूट बॉडी दैट इज सेकंड बॉडी दैट इज एनर्जी बॉडी। लेकिन उसके पीछे एक और बॉडी लगी है, वो मेंटल बॉडी है जिससे हम लोग डिसीजन लेते हैं। उसके पीछे एक और बॉडी लगी है और हाईएस्ट डिसीजन लेती है, उसे इमोशनल बॉडी कहते हैं। और उसके बाद में एक और सुप्रीम बॉडी है, और वी आर यूजिंग ओनली वन बॉडी जो सिर्फ मेटेस्टिक है। ये जो जानवर भी कर रहे हैं, जो आप लोग चाह रहे हैं, एक सुअर को मर के अंदर मजा आता है, उसमें अंदर बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, वो आपके जितना ही हैप्पी है जितना आप 5 स्टार होटल में हैप्पी है उतना वो वहां पे भी हैप्पी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है अपनी फर्स्ट बॉडी के बारे में जानकारी रखते हैं। हमारी जो साइंस, जो मेडिकल साइंस है, जो हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, ये हम फर्स्ट बॉडी तक सीमित है। और हमें इस बॉडी से आगे जाके अपनी इमोशनल बॉडी को चेक करना चाहिए, क्या वो इमोशनल बॉडी हेल्दी है, क्या वो मेंटल बॉडी हेल्दी है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उस पर कोई मशीन काम नहीं करती। और इसको जितना मोबाइल दिखाते हैं ये उतनी ज्यादा बेचैन होती है, वो उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। मुझे लगता है कि हमारा ये एजुकेशन सिस्टम में फंडामेंटल जो कमी थी जो गुरुकुल में नहीं हुआ करती थी। कभी गुरुकुल में इंसान को प्रेम करना सिखाया जाता था। आज हमने उनको बच्चे से बात की कि आपकी जो फैमिली है, फैमिली कैसे बनती है, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपका संयुक्त परिवार बनता किस वजह से है? जवाब नहीं, वो बनता सैक्रिफाइस से। राम और भरत को राम में सैक्रिफाइस देखी, उनको मजा आ रहा है उसमें, उनके आंसू के अंदर एक आनंद है। हम आनंद को नहीं समझे, हमें लगता है कि एक दिन हमें ऊपर जाना है। अरे ऊपर नहीं जाना, यहाँ ही मोक्ष लेना है, यहीं आपको मुक्त खत्म करना है, यहीं हैप्पी होना है। ऊपर जाना तो एक ऊपर भी कोई नहीं जाता। मुझे लगता है हम रीबर्थ होता है, इंसान व्हाटएवर जो कैरी करता है, तो जवाब व्हाटएवर अपने कर्म से कमाता है, उसको वापस लेकर वो वापस एक नया बॉडी लेता है, एक नया बॉडी लेता है। मुझे लगता है कि हमने अपनी फंडामेंटल एजुकेशन जिसको वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, अष्ट गीता कहते हैं, भगवद गीता कहते हैं, उनको हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और हम एक मेटेस्टिक दुनिया की तरफ बढ़ गए जहाँ पे सिर्फ एटॉमिक एनर्जी, चाहे इंसान को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, चाहे एक बॉडी दूसरी बॉडी को एक्सप्लॉइट कर लेना चाहते हैं। मुझे लगता है वो फंडामेंटली रॉन्ग है और इस वजह से बोलते कलयुग की कभी कल्पना की गई तो ऐसी कल्पना की गई थी जहाँ आदमी की एज ही 30-40 साल हो जाएगा, जो वो 10 साल के बच्चों को सारा एक्सपोजर दे देंगे, उसको मोबाइल के अंदर सारी सुविधाएं दे देंगे, उसको अच्छे से भोगी बना देंगे, तो कैसे 50 साल से ज्यादा उम्र को क्रॉस कर पाएगा? वो कर ही नहीं पाएगा, वो डिससेटिस्फाइड रहेगा।
मुझे आज एक भी इंसान बता दीजिए जो बोलो मैंने खूब भोगा और मैं तृप्त हो गया। आप किसी भी वर्ड के किसी भी आदमी को बता दीजिए, जो अमीर से अमीर आदमी उसको बता दीजिए आपने इतना पैसा कमाया, आपने इतनी शोहरत कमाई, आप क्या हैप्पी हो गए? बोले नहीं, हम डिससेटिस्फाइड है, हमें खुशी नहीं मिल रही। वो खुशी कहाँ है? वही तो डेस्टिनेशन है, वही तो मंजिल है, उसी को तो पाना है। लेकिन उसके बारे में हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बोलता। आज मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, डॉक्टर बनने की जल्दी है, डॉक्टर बनने के बाद पैसे कमाने की जल्दी है। मुझे लगता है कि हमारी बुद्धि का विकास तब होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध और पवित्र तब होती है जब हम सेवा करते हैं। सेवा करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और बुद्धि के शुद्ध होने से हमारे निर्णय सही हो जाते हैं। लेकिन हम हमारी बुद्धि को भी सही नहीं करना चाहते, उसमें भी हम काम नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि सेवा से बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि शुद्ध होने से एक बहुत भयानक काम हो जाता है, एक शानदार काम हो जाता है जो शायद ही किसी को पता हो। बुद्धि की पवित्रता से, बुद्धि की शुद्धि से क्या हो जाता है? बुद्धि की शुद्धि से मन पे लगाम लग जाता है। ये मन किसी की बात की भी नहीं सुनता। मैं ये मन जो है वो बेचैन है। शायद ही कोई बच्चा यहाँ बैठा हो तो बोले मेरा मन शांत हो गया। शायद यहाँ पे लाखों लोग बैठे हो और एक जगह खड़ा होकर बोलते मेरा मन शांत है। सबके मन अशांत है, सब ओवर थिंकिंग से भरे हुए हैं। और ये ओवर थिंकिंग तभी खत्म होगी जब बुद्धि मजबूत होगी, और बुद्धि मजबूत तब होगी जब सेवा होगा। किसी चिड़िया की सेवा, किसी पेड़ की सेवा, किसी जानवर की सेवा, अपनी माँ की सेवा, अपने बाबूजी की, अपने दादा की और दादी की सेवा, और उसमें जो सेक्रीफाइस और उससे जो आनंद मिलेगा वो भी एक आनंद है। लोग खा के आनंद ले रहे हैं, सेवा करके आनंद ले रहा है, कोई खाना खा के आनंद ले रहा है, कोई खाना खिला के आनंद ले रहा है। सब लोग अपने अपनी वजह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हम इंसान हैं, और आदमी और जानवर में फर्क होना चाहिए। इंसान जानवर वो जो खुद के लिए जिए, और आदमी वो जो दूसरों के लिए जिए। तो अगर हम सेवा से अगर अपनी बुद्धि को प्यूरिफाई कर दें, और बुद्धि को प्यूरिफाई करके अगर अपने मन के ऊपर दबाव लगा ले, तो मुझे लगता है हैप्पीनेस तो भी यही है, मोक्ष यही है। मौका छाया भी अभी इसी वक्त हो सकता है, पर हम उसकी तरफ हमारी एजुकेशन इंडिकेट ही नहीं कर रहे। हमारी एजुकेशन मेटेस्टिक दुनिया की तरफ ले जा रही है, इसलिए शायद हम सब प्रॉब्लम में, और आप जो बोल रहे हैं ओवर थिंकिंग की तरफ या मन अशांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये मुझे लगता है। थैंक यू सर। कहीं ना कहीं जैसा आप बोल रहे हैं कि ओवर थिंकिंग है, कंपैरिजन है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज जेलसी आल्सो। बिकॉज जब मैं देखूंगी अरे मैंने इतनी एफर्ट की पर मुझसे ज्यादा कम किसी को मिला है कम एफर्ट करके, तो ऑब्वियसली हमें वो चीज बुरी लगना शुरू हो जाती है। फिर हम उसके बारे में और सोचते हैं, कुछ कहीं से पता करते हैं, कहीं ना कहीं एक विशियस सर्कल जैसा बन जाता है कि आप एक चीज से दूसरी चीज को, तीसरी चीज को, और यही हमारे यूथ के साथ हो रहा है। बिकॉज वो जिन सोर्सेस के पास जाके सही गाइडेंस उनको मिलनी चाहिए, शायद वो नहीं ले पाते हैं। वो अपने peers के पास या अपने friends के पास या ऐसे लोगों के पास जाते हैं who are not able to tell them the right way out of it, and somewhere that also increases trouble and puts them into a bad zone जहाँ उनको stress, frustration, इस तरह की चीजें mental health से related होना शुरू हो जाती हैं, and they are dissatisfied and completely purposeless individual जो कि अपना एक purpose ढूंढते रहते हैं। तो आपको I'll ask Archana ma'am, what do you think about this? Should we have some kind of mental health guidance and some kind of mentorship in schools, colleges for children, जहाँ उन्हें बताया जाए, जहाँ उन्हें चीजों के बारे में अच्छी गाइडेंस मिले? Would that help in reducing that confusion? जैसा कि करुणा मैम ने बोला और संजय सर ने भी बोला, one point that she insisted on, that purpose of life has to be clear. और आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि बुद्धि का विकास और मन को कंट्रोल करना, ये सब बहुत जरूरी है। और जैसा चेरी मैम पूछ रहे हैं कि ये सब क्या ये चीजें हम स्कूल में एज अ करिकुलम सिखा सकते हैं या सिखाना चाहिए? आई एब्सोल्युटली अग्री कि स्कूल में इस तरह के कुछ करिकुलम में कुछ ऐसी चीजें हों जो हम सिखा सकें, लेकिन इससे ज्यादा important ये है that the curriculum has to be designed in such a way that these kind of mental strengthening things are part of the curriculum. It is not like a syllabus कि
क्लास में बैठ के एक लेक्चर दिया और बच्चे उसे समझ गए और सब ठीक हो गया. It comes through experience. One of the things what he insisted is सेवा. जब आप सेवा करेंगे, उसको करिकुलम में लाएंगे without making it an exam oriented thing, but हाँ सेवा करते हैं, सेवा से सेवा भाव से आपके जो अंतरात्मा है उसमें ऊर्जा भरेगी. दूसरी चीज है कि आपके जब आप मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि बच्चे को अपने आप को समझना, और ये कोई आसान काम नहीं है. हम भी आज इस एज और एक्सपीरियंस में होके हम भी कंफ्यूज होते हैं बहुत समय में हमें भी कंफ्यूजन होता है. हम भी सोचते हैं, असमंजस में पड़ते हैं, क्या करें क्या नहीं करें. तो एक बच्चा जब ग्रो कर रहा है, जब स्कूल के अपने स्पेशली जो first 15-16 years of life when the child his cognitive abilities are growing, बच्चे को ये समझना कि सही क्या है गलत क्या है, एक्सपीरियंस के थ्रू ये समझना कि इमोशंस क्या है, ये जेलसी है क्यों हो रही है, अगर मुझे स्नेह भाव रखना है क्यों और कैसे रखना है, सेवा भाव कैसे रखना है. ये इमोशन मेरे मन में आ रहा है कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन जब वो दोस्त अच्छा कर रहा है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है. तो इस चीज को समझना ये बहुत जरूरी है कि हम क्यों विचलित हो रहे हैं. अगर मुझे अच्छा करना है तो लेकिन हम मेहनत से पहले हमें ये करना है कि why is that person doing better than me and why is that person getting more marks or why is the teacher praising that person more than me. तो ये जो चीजें हैं कि हम through lot of activities and through lot of experiences during the school time अगर हम कर सके तो वो बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि जो आज सोसाइटी जैसी हो गई और जैसे आपने बार-बार कहा, सोसाइटी इज मूविंग मोर टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, whereas Indian society has been more based on culture and philosophy. वो कहीं हमसे छूट गया है और हम AI, मशीन, कंप्यूटर, दिस दैट हम उसकी तरफ जा रहे हैं, which is not wrong, but उससे हमारी जो भावनाएं, जो इमोशनल साइड है हमारे, उसको कहीं हम इग्नोर करते जा रहे हैं. So when it is a body which needs physical strengthening, it needs intellectual strengthening, लेकिन जो हमारी spiritual strengthening है वो कहीं कमजोर होती है. और उसी की वजह से आज का यूथ है वो कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहे. कंफ्यूज हम भी थे, आपकी उम्र में हम लोग भी कंफ्यूज थे, लेकिन शायद हम लोगों में मेंटल स्ट्रेंथनिंग ज्यादा थी, स्पिरिचुअल की तरफ, फिलॉसफी की तरफ हम लोग ज्यादा थे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटी एंड द फैमिली एटमॉस्फेयर एट होम. लेकिन आज की सोसाइटी में बदलाव आया है, फैमिली एटमॉस्फेयर, हमारे जो घर में डिस्कशंस होते हैं, दैट इज मोर अबाउट going to the mall and enjoying this and doing that and buying that, purchasing this, having the latest mobile. ये शायद डिस्कशन ज्यादा होता है. और हमारे समय में हम लोग दादा दादी नाना नानी के साथ बैठ के हमारे थोड़े से डिस्कशंस अलग तरह के होते थे. So we grew up being more mentally strong, I feel, and which is what is lacking in today's youth. I think mental strength is what should be definitely be part of the curriculum, and as a society also we need to start looking at it. The conversations at home or public places should be more about greater good. कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें सही मार्ग पे चलना है. जैसे कल आप सब लोगों ने जो राम मंदिर का जो देखा होगा, I think that is also a historic moment which says let's go back to our roots, let's look back on our culture and let us learn from that culture. कि जो राम, it is all symbolism. ये सब राम सीता इनकी कहानियां ये प्रेरणा देने वाली symbolic चीज है. राम थे या नहीं थे, that is not the question. पर राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें क्यों कहते हैं, उनकी जितनी भी कहानियां हैं, छोटी छोटी चीजें हमें क्या सिखा रही है. हम लोग रामलीला देखते देखते बड़े हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में अपने आप इंटरनलाइज हो गया। शायद आज का यूथ was bereft of these kind of experiences, and that is the reason perhaps that mental strengthening और जो हमारे जो अंदर का एक spiritual जो व्यक्ति है अंदर, वो शायद भूखा रह गया है आज के यूथ में। तो उस चीज को बढ़ाना, उस चीज को strengthen करना is very important, so that you are clear about what you want in life. You will understand your own self कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता। और जब अपने आप के अपने मन में जब क्लैरिटी आएगी, तब बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी कि मुझे करियर में किस तरफ जाना है, मुझे किस तरह से रिलेशनशिप अपनी आगे बढ़ानी है, किस तरह से मुझे किस तरह के एक्सपीरियंसेस चाहिए। वो सब क्लैरिटी तब आएगी जब हम खुद अपने आप को समझना शुरू करेंगे। एंड दैट I would sum up, as you said, mental and spiritual strengthening is the key to that road if you want to take. Thank you. Thank you so much, ma'am. Of course, mental strength is something which makes us take our own decisions and act as per the need of the situation. और कहीं ना कहीं today the children are actually very confused. बहुत सारा confusion शायद इसलिए भी है क्योंकि we've been again and again told एक चीज से नहीं होगा, कई चीजें साथ साथ करो, और फिर वो मल्टीटास्किंग पे आ जाते हैं। हम सोचते हैं हम सुन भी लेंगे, लिख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, साथ साथ फोन भी चला लेंगे। और जैसा अभी बहुत सारे बच्चे जो यहाँ हैं वो कर भी रहे हैं, they all already on their phone while they शायद हमें सुन रहे हैं या शायद नहीं सुन रहे, बट साथ साथ वो मल्टीटास्क कर रहे हैं। करुणा मैम, what would you say about this? क्या मल्टीटास्किंग is a boon or somehow it turns out to be a bane in the long run and adds on to the confusion that the youth already has? Cherry, it all depends on your personal ability and capacity and capability. If I can handle 10 tasks at the same time with the same intention, same clarity, I can always do it. And especially in this technical era, digital era, where the things are so easy. And why not? I think we ought to be, rather than we may not know, young generation breathing in digital era, you have to have that the what you call the knack. You have to have the knack for doing so many things at certain times. I'll tell you, not very late from now, last week I heard, and there was of course controversy. There's a two sides of the coin. This gentleman, Narayan Modi, he ended up saying that 70 hours per week the youth should be working if at all they want to see themselves doing something great and achievable. Then they should be ready to invest 70 hours per week. And there was loads and loads of social debate on it. But then, and each one of them making sense. So it depends on you as to what you want to achieve, what is your objective. If your objective is here, and you can balance your social life and you want to have your sleep, because again there's a debate which goes on, is 7 hours sleep a day essential, which we have been reading and hearing and we've been told and we've been brought up. And in European debates and American debates, they say no, you want to have your peace of mind and the body needs to be resting for 5 hours. All you require is 5 hours, take 5 hours rest. If you think your body is still not energized, go ahead, take 10 hours there. So it is so individualistic. It is so varies from person to person. So if at all your objective is somewhere there, and then you don't think of achieving in giving only 5 hours or 6 hours or 7 hours. So if your objective is somewhere great, then you be ready to give your become a multitasker, wherein multitasking means giving time to the family, giving time to the colleagues, and giving time to different tasks. Because one the objective which you have set in for yourself, you have to be giving more and more time. And how you giving justify that time?
How you divide that time, how you manage that time depends on you. So, objective, again, again and again, whenever I'm talking to people, to my colleagues, it's the objective. How serious you are to achieve your objective. How often you go and do your SWOT analysis. मैनेजमेंट आप पढ़ते भी होंगे और पढ़िए प्लीज। आजकल जो यूथ है सबसे ज्यादा जो हमें कलेश है इस बात की कि आप लोग पढ़ते हैं। The youth of the country is not reading, and if you're not reading, boys and girls, you're not learning. There's no, and if you're not learning, there's no growth. हम पढ़ते ही नहीं है क्या चीज चल रही है, क्या हमें करना है, और उसके बारे में हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते। तो स्वॉट एनालिसिस जब एमबीए करेंगे या नहीं भी करेंगे, न्यूज़पेपर गूगल के अंदर है, अपनी वीकनेस के ऊपर का आपको पता है कि स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है कि वीकनेस क्या है, और जो वीकनेस है उसी के ऊपर काम करना है, दैट इज इंट्रिंसिक। बाकी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जब तक आप अपनी वीकनेस पे काम नहीं करेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो कि आपको दिखेंगी और दिख भी जाएगी, लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, आप हासिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू नो व्हाट इज योर वीकनेस, एंड योर वीकनेस इज कम्युनिकेशन, एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन। योर वीकनेस इज कोलैबोरेटिव वर्किंग, योर वीकनेस इज आइसोलेशन, योर वीकनेस इज यू कैनॉट, यू आर हाइपर एक्टिव, यू आर अग्रेसिव, आप चुप रहते हैं। तो ये जो आपकी वीकनेस है, कम्युनिकेशन के अगर आपने काम नहीं करा या कंप्यूटेशनल स्किल आईसीटी से अगर आपने दोस्ती नहीं करी, ये आपकी वीकनेसेस है। आने वाले 5 साल के 10 साल पहले देखिए आईसीटी का क्या हाल था, और अब देखिए एवरी सेकंड डे देयर इज समथिंग और द अदर कमिंग न्यू। हम लोग तो एनालॉग एरा के हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। तो जितना आप अपने आप की वीकनेसेस के ऊपर काम करेंगे, उतना ही आप अपने दरवाजे खोलते चले जाएंगे। एंड मल्टीटास्किंग, यस, डिबेट्स होंगी, हम कहेंगे कि नहीं ये भी करना है, ये भी करना है, कितना वक्त आपको कितना देना है। जो बहुत सक्सेसफुल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेसफुल है, उनके पास भी 24 घंटा है। किसी एक इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ, किसी के पास 1 सेकंड 24 घंटा और 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं। वो कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं लाइफ और फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, they are doing it and they are reached where they are reached. So my point is, you have 24 hours. How you have to divide them, कैसे compartmentalize करना है, कैसे silos बनाने हैं, किसको कितना effort करना है, और अपनी कैसी SWOT analysis के ऊपर, अपनी weaknesses के ऊपर कैसे काम करना है। जब तक weaknesses के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो वही मन मुरझाएंगे, चिढ़ेंगे, डिप्रेशन में होंगे, और अपना डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, अपना जो पर्सनल इनर्शिया है, जो रुकना, उसको जब तक आप पुश नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा आके आपके लिए पुश नहीं करेगा। You have to push your own, you have to come out of your personal inertia. और हम लोग इतने by birth हम लोग एक प्रोग्राम है कि हम लोग फेल, हम लोग we are programmed to take the successes. कुछ कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा हो, गुड मार्क्स हो गए, बहुत अच्छा, पेरेंट्स भी बोले, जरा सा नंबर कम आया, गुस्सा। तो हम लोगों की दूध गिर गया, गुस्सा, कोई नुकसान हो गया, गुस्सा। हम लोगों को शुरू से, जिसमें हम लोग भी पार्ट है, बच्चों को सिर्फ सक्सेस का टेस्ट कराएं। Unless we do not let the child fall, उसको गिरने दीजिए, उससे गिरने दीजिए, उसको फेल होने दीजिए, उसको डिसबैलेंस होने दीजिए, उसको टॉपल होने दीजिए। जब तक ये सब कुछ वो करके अपने आप को डन डस्ट करके अपने आप नहीं खड़ा होगा, आप उसको बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। बॉयज एंड गर्ल्स एंड टेलिंग यू, not everyone who's successful has successes, every task of theirs turned into success. No, they ended up into so many failures. How do you know? They became successful, but then उन्होंने बहुत failures थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं। So if you are reading, if you are learning, if you are doing something कि मेरे को तो उसमें सक्सेस ही मिलनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव डिविएट हो। मेरे को यहाँ ये सीखना है क्योंकि मेरे को सीखना है, इस इंटेंशन से आप सीखेंगे तो आप सीखेंगे। ये जो वर्ड्स है इंटर्नशिप्स, ये जो वर्ड्स है अप्रेंटिसशिप, ये जो वर्ड्स है ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज को समझिए कि कोई भी काम छोटा काम नहीं होगा। अपने आप को ट्रेन, हर चीज की ट्रेनिंग, अभी हम लोग स्कूल से या कॉलेजेस है, फॉर दैट मैटर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एनी कॉलेजेस, हमारे पास हम लोग सिर्फ थियरी, द फोकस इज ऑन टू थियरी, हम प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं दे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एमटेक जो है वो बीटेक के बच्चों को आके पढ़ाते हैं। हम कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट को नहीं बुलाते, हम बच्चों को इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं भेजते। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम स्कूल्स के बारे में बात करें, बट देन व्हाट अबाउट द हायर एजुकेशन? कहीं कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, where they can feel, they can see, they can experience as to how they have to deal with things in life. And this is one reason. अभी हमारे country, I mean, ours is the largest now in terms of population, and 50% of it is below 25 years. Youth, हमारा 50% youth है। कितनी हमारी potential energy है, लेकिन हम लोग सब फंसते हैं। क्यों? क्योंकि खुद काम नहीं करते, क्योंकि ट्रेन नहीं है। डिग्रीज है हमारे, we have the degrees, we have the diplomas, we have everything possible, but then we do not get the employment. Why? We have the industry, but then we are not getting the skilled students. We have the students, 50% students है, youth energy है, but then we do not have industries those who can. अब देखिए HCL देखिए, अभी I was reading somewhere, some reports, TCS, HCL, IBM, Infosys, ये कहाँ पे ये जितने भी वो अप्लाई करते हैं, only 17% they employ. Only 17% out of lakhs and lakhs of students those who apply there, because technically qualified है, they have the proper qualification, they have the degrees, but they do not build, they cannot build a simple application. Technical assessment, they fail to pass the technical tests because the practical knowledge is not. And hence, boys and girls, see, ensure that you take the trainings. ट्रेनिंग लीजिए, अप्रेंटिसशिप लीजिए, बिना पैसे के लीजिए। स्टाइपेंड कोई नहीं दे रहा है, नहीं लीजिए। कोई आपको बोनस स्टाइपेंड कुछ नहीं दे रहा है, फ्री में जाइए, फ्री में काम करिए, लेकिन अपनी लाइफ के लिए जब तक आप अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे, डोंट थिंक यू विल बी सक्सेसफुल। So yes, and on that note, I'd like to say, if you want a task done well, you have to do it yourselves. So boys and girls, you have to actually get to it and work for yourselves. Think about it. Confusion रहेगा, बोलना बहुत अच्छा है, आसान है कि अरे पता ही नहीं क्या करना है, सुबह कुछ शुरू करते हैं, शाम को कहीं कुछ और दिमाग में आ जाते हैं और फिर बाकी लोग भी बोलते हैं। So yes, that will always be there. But आपको जाना है और अपना रास्ता खुद बनाना है, ये आप ही की जिंदगी है। And to conclude our talk, हम educators हैं, we can talk at length, हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। But to conclude our talk, I'd like to take one tip each from our three panelists on how you can minimize your confusion. Sir, आप एक कोई टिप दीजिए बच्चों को। मैं उसी वर्ड से स्टार्ट करता हूँ, मल्टीटास्किंग होना अच्छा है या बुरा है। मुझे लगता है कि एक समय में जब आदमी एक काम करता है तो आनंद की तरफ बढ़ता है। आप किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूम में जाएंगे, पीसफुल, शांति, वन टास्किंग। एक समय में जब एक काम करेंगे, खा रहे हैं तो खाने का एक एक गिलास का बजा रहेगा। आप सुन रहे हैं तो सुनने को पूरी तरह से आनंद। आप सुनते समय मोबाइल देख रहे हैं, ना मोबाइल अच्छा हो पा रहा, ना सुनना अच्छा हो पा रहा है। मुझे लगता है कि एक समय में एक काम किया जाए तो उस काम करने का आनंद आता है और वो काम सक्सेस की तरफ बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि वो एक समय में अनेक काम करता है, वो क्लर्क बन सकता है, वो टाइपराइटर बन सकता है, ऑपरेटर बन सकता है, पर सीईओ नहीं बन सकता। सीईओ बनने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को 100% एक काम की तरफ ले जाना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें मल्टीटास्किंग नहीं, हमें स्मार्ट वर्किंग करना है, तो एक समय में एक काम करके उस काम को आनंद बनाना चाहिए। तो मैं जो एक अच्छी सी टिप्स देना चाहता हूँ कि ये क्या करें जिससे ये बुद्धिमान बने बच्चे, क्या करें जिससे इनके पास विजडम आए। और ज्ञान आता है जब आदमी एलिजिबल होता है, जब हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है, जब हमें थैंक यू बोलना आता हो। अब कोई टीचर बोल रहे हैं और वो कोई अपने टाइम को दूसरी तरफ यूज कर रहा है, अगर वो ग्रेटफुल ही नहीं है तो कौन आपको आपके पिताजी, आपके दादाजी, भगवान राम भी आ जाए तो आपको नहीं सिखा सकते। यू हैव टू बी वेरी ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो मुझे लगता है कि जब तक आपको थैंक यू बोलना नहीं आता तब तक आप कोई एजुकेशन में कुछ नहीं सीखते।
देखो कुछ भी चीज सब जगह चली जा रही है, कहीं ना कहीं जब तक है पॉजिटिवली घास लगी जा रही है, लेकिन अगर वास्तव में बेनिफिट की घास लगानी है तो आपको सबसे पहले तो एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और उसके लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा, और थैंक यू बोलना ही नहीं पड़ेगा, थैंक यू को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड नहीं करना पड़ेगा, आपने बोला जैसे फील करना पड़ेगा, then you will listen. Right. So, sir, का point है focus and be grateful to things. Ma'am, from you, please. My one tip would be know thyself. अपने आप को समझना, अपने आप को पहचानना, वो बहुत जरूरी है, और that will happen when you reflect on whatever you do and feel. I would suggest if you write a diary every night and not writing about that I went to X person's place and I did this and I did that, but writing about your feelings and the experience. मुझे आज इस बात पे बहुत ईर्ष्या हुई, so analyze क्यों मुझे क्यों बुरा लगा, मुझे क्यों jealousy हुई, क्यों मुझे खुशी हुई, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीजें analyzing your feelings all the time. So reflection, self reflection, self analysis, that is my single tip that we all should do every day. And if I can suggest one book, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, आजकल जापानीज इकिगाई की बात करते हैं. Ikigai is that word in Japanese language which means happiness of doing something. So we have to all find our ikigai. हमें अपना ikigai ढूंढना है कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है. So खुशी ये नहीं कि मुझे डॉक्टर बनने में खुशी है. खुशी इसलिए कि I am able to serve somebody and I am able to alleviate a person's pain. That is more important, not that degree that I have become a doctor. So हो सके तो आप बुक पढ़िए, which will help you look and find your own ikigai, which will give you happiness for life. It will give you lifelong happiness. Thank you. Thank you, ma'am. Karuna ma'am, one tip from you. One and only one tip. Have faith in yourself. Challenge yourself. Your life. You have to go and grab it. How you do it? The potentiality is inside you. Do not undermine your potential. Everybody has taken birth on this earth. पानी boiling water की आप लोग सुनते होंगे. अंडा है तो उसको solid करता है, और potato है तो उसको soft करता है. Environmental circumstances, more or less everybody is the same. You know what you get and how you get. No second person, for that matter, not even your parents can go and grab a life for you. So you have to go, you have to challenge yourself, you have the endless potentiality, you have to identify. Thank you and all the best. Go grab it. Thank you so much, ma'am, Karuna ma'am, Archana ma'am, and Sanjay sir. And I'm sure the youth here, आपने खुद ने भी कुछ समझा है और अपने और friends को भी आप guidance and direction देंगे based on the talk that we just had. बस करने की जरूरत है, जज्बा ढूंढिए और बोलिए मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, and let's just do it. Confusion सब खत्म हो जाएगा. Thank you so much and my gratitude and thank you to all of you who are here, the audience, the students and other faculty members of the college, the principal and Credent TV for organizing this talk. Thank you so much, sir, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, sir, for sharing your knowledgeable views and motivating our youth. Me being the youth also faces these problems and fears. Your guidance is very valuable and knowledgeable for youth like me. As youth seek your beloved guidance and motivation in our life. At last, I would like to conclude by a quote of Franklin D. Roosevelt. We cannot always build the future of our youth, but we can build our youth for the future. Sir, कोई अगर इन सब लोग बैठे हैं, अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो मजा है. किसी के पास भी कोई क्वेश्चन हो क्योंकि देखिए दिस इज वेरी रेयर प्लेटफॉर्म जो सर ने यहाँ पर दिया है. तो हमने जो इतना भी डिस्कशन किया जिसमें से कोई भी आपके दिमाग में कोई सवाल हो जिसमें समटाइम यू मे एग्री, समटाइम यू मे डिसएग्री, अगर कोई भी ऐसा सवाल हो तो इट शुड बी रिजॉल्व. एनीबॉडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन. Sir, I'm an anchor for your session, but as a youth, I also seek your guidance. As a youth, I feel very backstage, but how I can cope up with the people like who are better than me,
one step ahead than me. How I can cope up with them? You should accept yourself. If you are tall, then accept I am tall. If you are angry person, then accept you are angry. जैसे आप सहज होंगे ना, जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको दूसरे से कंपैरिजन करना हो जाएगा. Everybody is unique. हर इंसान एक अच्छा, उसके अंदर कुछ अच्छा ही है. आपको अपनी जैसे मैंने कहा इकिगाई को पहचानिए, आपकी क्या अच्छाई है. आप उस अच्छाई को बढ़ाइए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपसे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा. लेकिन आप दूसरों की एरिया में जाके काम करेंगे, वहाँ आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा. So love yourself, love your passion, सहज रहिए और अपने आप को कबूल करिए, अपनी गलतियों को भी सबके सामने स्वीकार करिए. यस, आई एम एट मिस्टेक, यस आई एम एट रॉन्ग साइड, जैसा भी होता है उसके बाद में आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल हो गए. सर बट कंपैरिजन ही तो लीड करेगा आपका चेंजेस लाने में, क्योंकि अगर मैं एक्सेप्टेंस कर लूंगा तो मैं चेंज ही नहीं कर पाऊंगा. क्योंकि कंपैरिजन आप इसलिए नहीं कर सकते कि हर एक इंसान को यूनिक बनाया गया है, तो आप उनसे कंपेयर कैसे करेंगे? हर एक फूल को लाल फूल से कैसे कंपेयर करेंगे? यू हैव टू कम्पीट योरसेल्फ. कल से आप बेहतर हुए या नहीं हुए, कल आप जो बोल रहे थे आज से बेहतर बोल पा रहे हैं. बेहतर किससे? अपने से, खुद से कंपटीशन करो कि आप कल से आज बेहतर हुए या नहीं हुए, कल से मार्क्स आपके ज्यादा आए या नहीं है, कल से आप ज्यादा आज हैप्पीनेस है या नहीं, कल से ज्यादा आज आप मुस्कुरा रहे हैं या नहीं मुस्कुरा रहे हैं. क्योंकि आप किस सबसे कंपैरिजन कर नहीं सकते, कंपटीशन कर नहीं सकते. बट सर कंपटीशन जो रियल लाइफ में है वो तो बाहर वालों के लिए, अपने लिए नहीं है ना. बाहर वालों का ही तो मेन कंपटीशन है. लाइक अगर आरजेएस देना चाहता हूं तो मेरा कंपटीशन जो बाकी अदर कैंडिडेट्स है उनसे है. मेरा कैंडिडेट मेरा खुद से नहीं है. मेरा कंपटीशन मेरा खुद से नहीं है. मेरा कैंडिडेट मतलब मेरा कंपटीशन वो सबसे है. वही बात है ना, अपने आप को काबिल बनाओ. आप दूसरों से तुलना मत करो अपनी, क्योंकि उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा आपके अंदर. आप अपने आप को काबिल बनाओ, आप अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाओ, तो मुझे लगता है फिर आप उनसे अच्छा कर पाएंगे. रोजाना धीरे-धीरे बढ़िए. तो आज उससे कर रहे हो क्योंकि उसकी डेस्टिनी अलग है, उसे एक अलग परवरिश मिली है, उसे एक अलग एजुकेशन बैकग्राउंड मिली है, उसे अलग तरह के टीचर मिले. तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए अपनी रोजाना सक्सेस से खुश होइए, हैप्पी होइए, उसको आगे बढ़ाइए. देन आप धीरे-धीरे चलते आप बहुत तक पहुंच जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है. लेकिन वो जो I'll just add here. When you say that when you are appearing for RJS और आपका जो competition है बाकी कैंडिडेट से है, so of course answer to one question will be similar जो सब लिखेंगे, but आप उस आंसर को कैसे बेस्ट लिख रहे हो, आपकी अपनी कैपेबिलिटी इन एक्सप्रेसिंग दैट आंसर बाकी कैंडिडेट से, so उसके ऊपर काम करिए. कि वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वह कंपैरिजन ही नहीं होगा तो हमको पता क्या चलेगा कि हम है कहाँ. So comparison not in terms of the natural traits जो दिए गए हैं, comparison in terms of expression of your intelligence, your cognitive ability. जहाँ पे आप उसको compare कर रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ या ये भी लिख रहा है, A भी कर रहा है, B भी कर रहा है, but मैं B से बेहतर कैसे कर सकता हूँ is what you have to write. अपने आप को नहीं compare करना. It's not a comparison of a human being, a person. It's a comparison of what you can do better than the other person. आप कब अच्छा कर पाते हैं? जब आप इंफीरियर फील करते हैं, जब आप अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं, नहीं तो परफॉर्म बेटर. जब इंफीरियर फील करते हैं, जब वो फील नहीं करेंगे तब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अपने आप को सुपीरियर फील करेंगे तो पता है कि हमें सब लोग मुझसे नीचे हैं. देखिए फिर इसका मतलब ये हुआ कि हर पर्सन के लिए काम करने का अलग तरीका है. आप अगर इंफीरियरिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर काम करते हैं तो यू शुड अडॉप्ट दैट वे. वैसा नहीं है. अगर आपको लगता है कि इस तरह से मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूं, क्योंकि एक बच्चे को डांट के पढ़ाया जाता है, एक को प्यार से पढ़ाया जाता है, सबके अपने बात. सो अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं तो यू शुड डू लाइक दिस. थैंक यू सर. सर आल्सो ये जो कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, तो कंपैरिजन अगर हम देखें तो घर से ही शुरू होता है. जो हमारे पेरेंट्स है वही हमें हमारे कजन से, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं. पीटीएम्स में जाते हैं, वहाँ पे ये सब चीजें कंपैरिजन वगैरह देखने को मिलती है. और सर इससे कई बार ये भी होता है कि अगर हम किसी चीज को लेके मोटिवेटेड है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरे पीयर्स हैं या जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मुझे ऐसा कहते हैं कि आपकी ये स्पेशलिटी नहीं है, आपके दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छा आ रहे तो आप वो फील्ड चूज करो. तो सर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है और सर ये बहुत मतलब सेल्फ डाउट वाली चीज हो जाती है. मुझे लगता है कि अपने को जो है
दूसरे दूसरे पेरेंट्स को भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों में बहुत हीन भावना पैदा हो जाती है। सो ये पेरेंटिंग की मिस्टेक्स है। मुझे लगता है हर आदमी डिफरेंट है और हर आदमी की में अच्छाई भी और कमी भी है। तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और हमेशा बच्चे की जो अच्छाई है उसको बताना चाहिए। क्या इन्होंने तुम्हारा सवाल का जवाब देना? Yes. सर एक्चुअली ये भी कि अगर इन सब चीजों की वजह से किसी इंसान के किसी बच्चे के अंदर सेल्फ डाउट होता है, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होता है, तो इस चीज से ओवरकम करने का क्या एक सॉल्यूशन है? जैसे मैंने कहा सेल्फ एनालिसिस करना कि मेरे को ये कंपैरिजन किया, क्योंकि देखो आपको अपना हीरो खुद ही बनना पड़ेगा। आपको अपने रास्ते अपनी मंजिलें खुद ही तय करनी पड़ेगी, अपने निर्णय और अपने आप को खुद ही को समझना पड़ेगा। कुछ समय के लिए पेरेंट्स, उसके बाद आप भी आत्मनिर्भर होना है। मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे खुद को, जैसे मैंने बताया, खुद को जानने की तरफ बढ़िए, है ना, और फिर धीरे धीरे चीजों से ओवरकम करके खुद को एम्पावर करने के लिए करिए। उसके लिए मैंने जो कुछ बुक्स बताई है, मैं चाहता हूँ जैसे हाउ टू मेक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दैट काइंड वेरी बुक है, उसको पढ़िए। तो धीरे धीरे आप साइकोलॉजी की एक मॉडर्न तरीके से आप साइकोलॉजी को पढ़ने लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ बैठे हुए बच्चे बुक के अलावा कुछ पढ़ते हैं। मुझे लगता है हर रोज एक घंटा इन्वेस्ट करना चाहिए तो साइकोलॉजी और फिलोसॉफी और लाइफ स्किल को सीखने के लिए, क्योंकि लाइफ स्किल आपको कूल बनाएगी, काम बनाएगी, उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। And also it is that you have open communication with your parents. खुला बातचीत करिए, and we do that a lot of times at our school. So thank you so much, because समय का कुछ प्रतिबंध है, हमें बोला भी गया है कि आप ज़्यादा समय ले रहे हैं. But yes, this topic was of interest of all of you. So thank you so much, and we all had a good time. Hope you had a good time too. Thank you. Now, we would like to facilitate our esteemed guest. Now, I request our principal, Professor Dr. Karuna Yadav ji, Mahendra Madhu, and Sunil Narnaulia ji, to honor our esteemed guest. Give them a huge round of applause. Thank you, Dr. Sanjay Biyani ji, along with Archana Mankotiya ji, Karuna Yadav ji, and Goyal ji for sharing your grateful views with us. Give them a huge round of applause.